ำไมไม่สวยอะ ก็ก็ไม่สวยเนี่ยก็ถึงไม่ชอบอ่ะ นี่มันสวยตายอะ ก็ดิ จำไว้ชั่วชีวิตของเองนะ ห้ามเองลอดใต้ราวตากผ้า เฮ้ยเล่าต่อซิมงทำไงให้มันพลาดวะ ง่ายมากก็ใช้ของใช้ใกล้ตัวเรานี่แหละกูเอาวัสลีนไปทาเสานะสิ เฮ้ย เฮ้ย มึงใช้จริงเหรอวะ ทาบนเสาแค่นิดเดียว อ้าวมึงทำไงอีกล่ะถ้ามันกล้าลองดีกับมึงอีกอะ กูมีวิธีจัดการกับมันโดยตรง คราวเนี้ยมันต้องเพ่นออกจากกรุงเทพแน่ อีเนี่ยมันอวดดีที่คิดจะมาแย่งแขกพวกเราสมควร อย่าห่วงเลย อย่างเงี้ยกูจัดการมานักต่อนักละ กัมมังเอหิชนะจิตตังเอหิสันติเกปิยังมะมะกัมมังเอหิชนะจิตตังเอหิสันติเกปิยังมะมะสัมมังเอหิชนะจิตตังเอหิสันติเกปิยังมะมะ ฝีมือมึงใช่ไหมดาว ถ้านั่งเมนายฝรั่งอ่ะ มึงใช้สายศาสตร์ให้เป็นแบบนี้ใช่ไหม ใช่ กูใช้ไสยศาสตร์ ก็แค่อยากให้มันเจ็บตัวนิดหน่อย กูไม่รู้ มึงคิดว่ากูทำอย่างนั้นจริงๆเหรอ กูว่าไสยศาสตร์ของมึงอ่ะก่อเรื่องแล้วดาว อย่าเกลียดกูเลยนะ กูจะไม่ก่อเรื่องอีกเด็ดขาด กูสัญญา นี่คงเป็นกรรมเก่าของนางเมย์มันอะถ้ามันไม่โดนมึงทำมันก็คงโดนดีเข้าสักวัน จากการที่มันเคยทำร้ายคนอื่นมาก่อน มึงเชื่ออย่างนั้นเหรอ หมอบอกว่ามันรอดชีวิตมาคราวเนี้ยมันคงกลับมาทำงานอีกไม่ได้ เพราะดาบอะพาดไปโดนตาข้างซ้ายของมันทำให้มันตาบอด แล้วมึงยังคิดว่ากูใจดำอยู่ไหม ไม่หรอก แต่มึงอะควรมีสติยั้งคิดมากกว่านี้ แล้วคาถาของมึงอะใช้อะไรบ้างวะ ได้บางอย่างเท่านั้น มีแบบคาถาแบบทำให้นมใหญ่กว่านี้ได้ปะ ได้ สอนกูหน่อยดิ อย่าดีกว่า โอ้นะขอร้องนะ กูมีของแลกเปลี่ยน เอง ด้วย จะสอนวิชาอะไรให้ใครก็แล้วแต่ อะไร หอมึงฟาดหนึ่งอะพอไหมวะ เองอย่าไปเรียกอะไรจากเขา กูว่ามันได้ผลจริงๆอะมึงว่าป่ะ ดูดินมกูใหญ่ขึ้นจริงด้วย มึงจำได้ป่ะตำราหมอผีที่กูอ่านอ่ะ มันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดนะเว้ย จริงๆแล้วมันเป็นแค่หนังสือพระเว้ย โอ้โหปากมึงอะนะแล้วมึงเนี่ยจะกินอะไรอะ ลาบดิบ โอ้โหทำเป็นประชดแต่บอกไม่ชอบไง
กูหิวจนน้ำลายสอแล้วไปเถอะปะ ตายอดตายอยากจะมีท้อง อร่อยปะ ห้ามเองกินเนื้อดิบ อร่อยเลยนี่กินก็ไปเหอะ มันเป็นยารู้ไหม ห้ามเองกินเนื้อดิบ หยอก มันจะเปลี่ยน หน่อยอะ ทันที เป็นปีศาจร้าย เข้าสิงเอง อีกครั้งได้ไหม ไปอาบน้ำก่อนสิคะ เดี๋ยวฉันตามไป ฮัลโหลวันนอนวันนอนอะไรกับผมมาคนโอ้ คุณ คุณ
ชาชนครับคุณ आओ, जाओ, काम का वक्त हो गया है। तुम दिन भर सो ही रही थी। ऐसा लगता है जैसे मैं साल भर से सो रही हूँ। हाँ, अगर मैंने तुम्हें जगाया नहीं होता तो शायद तुम पूरे साल भर सो ही रही होती। शायद मैंने बुरा सपना देखा। किस बारे में? मैं एक ग्राहक के साथ थी। वो शावर में था और हर तरफ खून ही खून। मुझे लगता है मैंने उसे मार डाला। क्या वो अमीर था? मुझे नहीं पता। शायद मैंने उसे पैसे लेने से पहले ही मारा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर तुम ग्राहक को मारने वाली हो तो पैसे पहले ले लेना। हॉस्पिटल वाले कहते हैं अब मैं इंटेंसिव केयर से बाहर निकली है। मैं उसके लिए एक कार्ड और फूल ले जाऊंगी और मैं उसके लिए पैसे भी जमा कर रही हूँ। वो तलवार वाला शो कैंसिल हो गया, बाकी शोज वैसे ही रहेंगे और डाओ मे की जगह लेगी। ये जगह सुरक्षित तो है ना? तो मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि यहाँ 100 बात के लिए भी आपको लूटा जाता है। इतनी डरपोक भी मत बनो। मैं यहीं पर पली बड़ी थी। सब कुछ ठीक है, मेरे साथ चलती रहो। सॉरी, अब देखा ना, अब पता चला असल डरपोक कौन है। चुपचाप चलती रहो मेरे साथ। ये आदमी अच्छा होना चाहिए, जैसा कि तुमने कहा था। ये अच्छा ही है, ये सब जानता है। इसे हर तरह का जादू आता है। अगर वो जादू करना जानता है तो जादू से पैसे बनाकर इस बेकार जगह से निकल क्यों नहीं जाता? तुम स्टाइलिश हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लोग ऐसे ही हैं। कुछ लोग ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं। इसलिए तुम और मैं पार्क के पास एक आलीशान मकान में रहते हो, ठीक है ना? मुझे लगा तुम डरपोक नहीं हो। और फिर तुम्हारा क्या? कौन है? मेरा नाम न्यू है। तुम क्यों आई हो? अगर इन्हें सब कुछ पता है तो ये क्यों नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए? चुप रहो। अच्छा। ये शायद तुम्हारी दोस्त के एक्सीडेंट के बारे में है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, आपको कैसे पता? मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, आराम से बैठ जाओ। बताओ, तुम लोग मुझसे क्या चाहती हो? और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे तो है ना? वैसे आपको कितने पैसे चाहिए? 500 बात। दे दो उसे। तुम्हारी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ क्योंकि किसी ने उस पर जादू टोना किया। ये जो कोई लड़की है उसने जादू सीखा है, और वो भी मेहनत के साथ, पर इसने अपनी शक्तियों को काबू में रखना नहीं सीखा और अब उसने कुछ बड़ी गलतियां की हैं। बुराई ने इसके दिल का रास्ता ढूंढ लिया है और अब वो उसके अंदर पल रहा है। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं इस वक्त, मैं बुराई को करीब से महसूस कर सकता हूं। ये जो कोई भी है तुम्हारी जान पहचान में है। अब हम बस इंतजार कर सकते हैं और जब वो बुराई बढ़ेगी वो एक शारीरिक रूप ले लेगी। हमें पता करना है कि ये लड़की कहां रहती है। हर रात ये बुराई इस लड़की के शरीर से निकलकर शिकार करेगी और हर सुबह उसके शरीर में लौट आएगी और वही वक्त होगा उसे पकड़ने का। अब हमारा कर्म एक जैसा है जो हमें बंधन में बांध देता है। अब ठीक है, बिजली चली गई थी, इतनी देर के बाद बिजली वापस आई है। अब मैं अपना पसंदीदा चैनल देख सकता हूँ, लेडीज रेसलिंग वाला। तुम्हें एक काम करना है, पता करो वो कहाँ सोती है।
नाइट। सोमचाय सुनो, दूसरे माले पर एक विदेशी का कहना है कि उसके बगल वाले कमरे में किसी की कराहने की आवाज आ रही थी। तुम जाकर देखोगे? एक विदेशी का कराहना आपको ये अजीब लगता है और आप चाहते हैं मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं? अच्छा फिर भी तुम एक बार देख लो। हेलो, वहां कोई है? सर, सर, क्या कोई गड़बड़ है? सर, कोई गड़बड़ है? दाऊ, कोई बुरा सपना देख रहे हो? कौन है? कौन है वहां? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम चुरा सको। चले जाओ, जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। चले जाओ। क्या बात है? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? लेकिन मैंने क्या किया है? एक बुरा सपना, एक बहुत ही भयानक सपना। हम दोनों को बुरे सपने क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्या ये जादू का असर है या कुछ और? पता नहीं। सॉरी, इस बार में सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं। अच्छा, और वो मेंबर्स अमेरिकन, इंग्लिश, जर्मन या जापानीज हो सकते हैं, मगर थाई नहीं। सही कहा ना मैंने? पता नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी बेटी, बीवी या गर्लफ्रेंड को ढूंढने आए हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। यहाँ लड़कियाँ अपनी मर्जी से आती हैं। तुम मेरे लिए यहाँ मुसीबत पैदा कर रही हो। देखो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। क्या तुम्हारे पास इन सब चीजों के लिए लाइसेंस है? आप जनरल सलावत को जानते हैं? ऐसी मुश्किलों में वो ही हमारी मदद करते हैं। मैं यहाँ पर एक लड़की की तलाश में आया हूँ और मेरे पास उसका ये आईडी कार्ड है। मामला क्या है? एक होटल के बाथरूम में एक फिरंग मरा हुआ पाया गया था। बुरा हाल था। उसकी मौत की रात वो इस लड़की के साथ ही था। एक गवाह ने उसे अपना आईडी कार्ड पीछे छोड़कर भागते हुए देखा। ये कार्ड मेरे पास है। आई एम रियली सॉरी, हमारे यहाँ इस नाम का कोई नहीं है। हमारी खबर पक्की है, वो यही काम करती है। हे, क्या दाऊ का आई कार्ड खो गया? यानी वो यहाँ काम करती है? ओह हाँ, वो यहाँ के शो की मशहूर स्टार है। ओह, वो हमारे यहाँ काम करती थी, मगर बहुत पहले। देखिए, ये किसी कत्ल की पूछताछ नहीं चल रही है। वो आदमी कुदरती वजहों से मरा था, पर डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा कि उसे हुआ क्या था। इसलिए मुझे दो से बात करनी थी। शायद वो बता सकती है मरने से पहले उसे क्या हुआ था। वो मिले तो मुझे फोन करने कहना। ये रहा मेरा कार्ड। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? तुम उनसे बात करोगी, कहना आई एम सॉरी और पूछना क्या वो मुझे वापस लेंगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आज रात को ही बात कर लूंगी। मैं सेक्सी लेडी बार में नहीं जाना चाहती। वहाँ सारे जापानी भरे पड़े हैं और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसमें क्या खराबी है? जापानी आदमी प्यारे होते हैं।
वो लोग तो जर्मन से भी बोरिंग होते हैं। वाह। ओह, और उस बेवकूफ दाऊ से जरा कहना कि मैं उसे ढूंढ रही थी। हाँ, शायद हमें सचमुच ही उसे ढूंढना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा क्यों? अच्छा जरा सोचो, उस एक्सीडेंट के बाद मे की जगह कौन सी लड़की को मिल गई? वो दाऊ को मिली। बिल्कुल, शायद ये उसी का किया धरा हुआ हो। पता है ना, वो सी सकेत से आई है। वहाँ के खेमर्स काला जादू जानते हैं। तो फिर इसका मतलब होगा कि वो वही है जिसके अंदर वो बुरी शक्ति है, और वो विदेशी जो मर गया उसका शिकार। बिल्कुल सही। मैं जानती हूँ वो और पुकी कहीं साथ में ही रहते हैं। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी। हाँ, फिर हम उस बुरी आत्मा को ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगी। मेरे फोन का इंतजार करना। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं बोर हो जाऊंगी। शायद जाकर कोई फिल्म देखूं। अच्छा, मुझे जाकर काम करना है। मैं तुम्हें फोन करूंगी। खाने का शुक्रिया। बाय बाय। ए, सुनो, क्या इस खाने के पैसे मुझे देने हैं? ताओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आज का दिन कैसा था? वही हमेशा की तरह। जब जॉय विस्की खरीदने जा रही थी, मामा सांग ने उसे पकड़ा तो उसे जुर्माना भरना पड़ा। जियाओ वापस आ गई। उसका आदमी वापस जर्मनी चला गया। बिम फिर से शादी करने वाली है, 6ठी बार। और पता है, ऑन ने तो अपना नया मोबाइल टॉयलेट में गिरा दिया। मी बार में सबसे पूछताछ कर रही थी कि मैं कहाँ रहती हूँ। शायद मे को लेकर उसे शक है और सब जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ हो। मामा सांग मान ही नहीं रही तुम बीमार हो। समझ में नहीं आता मैं उनसे क्या कहूं। मैं चाहती हूं तुम पिछले 2 दिनों से नहीं सोई। कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। मैंने तुम्हें रात रात भर ऐसे बैठे हुए देखा है। ये क्या ड्रग्स? लगता है तुम पागल हो गई हो दाओ। तुम नहीं समझोगी। हाँ समझती हूँ, तुम्हें इसकी आदत लग गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सो नहीं सकती। सो भी नहीं पाओगी अगर ये चीज लेती रही। जब मैं सोती हूँ मुझे डरावने सपने आते हैं। वो इतने असली लगते हैं जैसे वो सच हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम बता सकती हो? हालात ठीक हो जाएंगे, तुम बिल्कुल डरो मत। वो चीज तुम्हें पागल कर रही है दाओ। अब जादू वगैरह पुरानी बातें हो गई हैं, भूल जाओ वो सब ठीक हो जाएगा। मुझे नींद आ रही है। ये तो अच्छी बात है दाओ, तुम्हें सोना चाहिए। पर मुझे फिर से बुरे सपने आएंगे। अगर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी? बिल्कुल, हमेशा रखूंगी। वादा? वादा रहा। तुम ही तो हो अकेली जो। मैं अकेली हूँ जो मेरे साथ इतनी अच्छी पेश आई। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे सिर्फ वो 500 बाँट चाहिए।
ये मैं हूँ पूकी। तुम मुझे नहीं जानती क्या? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज।